Across the nations, across the globe, we are the stars of David. How glorious is today! Every day is beautiful. No matter what you are going through, it is glorious. Why? Because every day has been made by God, and He made everything good. Are you feeling His presence in your life today? Are you witnessing the glorious works that He does every day for everyone? Well, He is doing miracles every day. Our God does wonders every day. But do we see the wonders? Do we appreciate the wonders that He does every day? God waits for us. He is a patient God. हमारा खुदावन सबर करने वाला खुदावन है और वो चाहता है कि हम भी सबर सीखें, क्योंकि जैसे कि एक मिसाल है कि सबर का फल मीठा होता है. ऑफ कोर्स सबर का फल मीठा होता है. अगर हम फल को कच्चा तोड़ लें तो फिर उसमें मिठास नहीं होती. कई लोगों को खट्टे आम पसंद है, कई लोगों को कच्चे फल पसंद है, लेकिन जो मजा पके हुए आम का और जो मजा पके हुए फल का होता है वो ऑफ कोर्स एक कच्चे फल का नहीं होता. So here we are again today on the 6th day of the week, a Friday. The 6th day, as I repeat very often, is the day that God created all the animals and us, Adam and Eve. And we are here praising and worshiping our God, Yahweh, after 6,000 plus years, trying to be His image. But how can we be His image when He's a spirit and we have a body? Well, our God loves us. And just like a father who wants to set an example for his children, and the children follows the father and the mother, whatever he sees, children see and they learn more compared to what they hear. So, who do we see when God is a spirit? And no one has seen God, the scripture says. Well, we can certainly follow one example, the image of God, and His name is Yeshua. Jesus, the most beautiful name in the whole wild world. Some people say, don't call Him Jesus because He was called Yeshua. Well, different languages call Him in differently. In Urdu, we call Him Yesu. Spanish, they call Him Jesus. And I don't know what other language is Jesus called and what name. Yes, truly, He was called Yeshua. Yah-Shua. Yah comes from the word, the name of God, Yahweh. Yeshua. But the thing is, He knows our hearts. We can call Him by any name, but the name is only on the tongue. What about this person who cannot talk? How would he call Jesus? Would he call Him Yeshua, Jesus, Yesu? What will you hear from His mouth? You will hear nothing because He cannot talk. But in sign language, this is all you have to do. So as long as God understands you, you need not have any other person to explain yourself to. Because God looks in here. He doesn't look at the face. He doesn't look at what you're wearing. He looks at the heart. He looks at the heart. Is your heart close to God? Or is it still wavering and looking into the desires of the flesh? And the desires of the flesh are very difficult to control. Every day we face different circumstances in which we want to give in to the flesh. Sometimes it's our own desire and sometimes it's a desire because of our loved one. It could be a husband, wife, child, parent, sister, brother, anybody whom you consider to be very dear to you.
But imagine our true God. He loves us so much that in order to buy us back so that we can see him, he gave his only begotten Son, Jesus, Yeshua, who knew no sin, so that he could buy us back. That means now we are washed and cleansed by the holy blood of Jesus by faith. And without faith, it is impossible to please God. And that's Hebrews 11:6. And this is the year of faith revival for Stars of David as we move on to Italy in May. And this is the third year that we are going in succession every year to that country, to that city, because the demonic powers are very, very strong in that country, especially Rome. And you see at the back in the corner, that's the flag of Rome. And today I've been praying for 3 countries. And as I continue and we come to intercession, you will know what are the 2 flags. If you recognize them already, good. But these are the 3 countries that I have been interceding, and you can see something in common. There are 3 colors in common in these 3 flags, and it's a red and a white and a green. And I'm wearing green today. And what is the significance of colors? Well, every flag is a different color and has a meaning. And every color that you can imagine has a meaning. And the scripture tells me about colors and their meanings. The mysteries are unfolded in the Bible, provided you understand the language of the Bible, and that is only understood by the Holy Spirit, because it was written by the power of the Holy Spirit by 40 different people across different continents, but one Spirit, and that's the Spirit of truth, Holy Spirit. And it was the Holy Spirit through which Jesus was conceived, who had no physical father, but Yahweh is the Father. He's our Father, and therefore we call out to him, our Father who art in heaven. Let's praise him and let's exalt his name upon high as we have 3 cities today joining hands and hearts together: London, Karachi, and Quetta. Let's exalt the Lord today, as Friday is the day of praise and worship from Quetta. I will request Shreb to take the lead and lead us into praise and worship. Let's enthrone him with our praises. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं और हम स्टार्ट करेंगे ज़बूर से, ज़बूर 119, तेरी नजात दे शौक दे विच। Hallelujah. How great are you, Lord, for saving us. तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान, तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। हेलो हेलो, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ जी, कंटिन्यू। वो डिस्कनेक्ट होके वापस आया हूँ मैं, ओके ओके, तो मुझे दैट्स नहीं ओके। पता था मेरी आवाज अभी आ रही। मेरी आवाज आप जी लोगों को? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोयटा में इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने लास्ट मीटिंग वो में भी बताया शैतान को था, भी पता है ये तो शैतानी चरखा है, लेकिन हम इसको खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होया है फना, तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते हो
दिया है बना, कदो जवाब तू कहेगा, देवेगा तुम तसल्लियाँ, कदो जवाब तू कहेगा, देवेगा तुम तसल्लियाँ। चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल, चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल, सुखी हुई जेड़ी देना, पर मैं ना भूले तेरा नाम, सुखी हुई जेड़ी देना, पर मैं ना भूले तेरा नाम। मैंने कुदसिए खुदा इतनी दिहाड़े जीवागा, मैंने कुदसिए खुदा इतने दिहाड़े जीवागा, मेरे दुश्मना कीदा, कदों तू करेगा नया, मेरे दुश्मना हीरा, कदों तू करेगा नया। Hallelujah. वास्ते मेरे खुदा है जो घमंडी बेशरम, वास्ते मेरे खुदा है जो घमंडी बेशरम, सुख देने को ढूंढे जाना, होना दे विच तारीख समा, सुख देने को ढूंढे जा, होना दे विच ना डिग पवा, तेरी नजात शाम तेरे की बेहोश है मेरी जान, तेरे ही पौधे हैं खुदा, तेरी मैं रखदा Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. He's a good God. Let's praise Him. Let's praise Him. Let's praise Him so that He can transform us. Let's praise Him. Hallelujah. वैसे तो जारी रखते हैं, खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। एज वी कंटिन्यू, नेक्स्ट हम एक और जबूर गाएंगे, जबूर 69। रब सचमुच उसकी सुनता है। बेशक, बेशक, बेशक. As you continue to listen to this worship, I just want you to remember one thing. इस song में जो अभी गीत, sorry, एक ज़बूर में जो अभी गीत ज़बूर गाया गया, उसमें था चमड़े दी चमड़े दी क्या था, मश चमड़े दी मश दी मिसाल. इसको याद रखिए, वाइन स्किन्स, क्योंकि मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ती हूँ. वाइन स्किन, because I want to talk more about it as I continue with the message today, but keep this in mind. And as we continue, let's uplift our hearts unto Him. Hallelujah. आमीन। हालेलुया।
रब सचमुच उस दी सुनता है, रब सचमुच उस दी सुनता है, दुआ जो उसको मंगता है, दुआ जो उसको मंगता है, अपने असीरा खुदा हकीर न कभी समझेगा, अपने असीरानी खुदा हकीर न कभी समझेगा, मुसीबत दे बिच फसया हाँ, मुसीबत दे बिच फसया हाँ, दुखियारा दुख बिच धसया हाँ, दुखियारा दुख बिच धसया हाँ, तलाशी दे देगा खुदा, बुलंदी में बख्शेगा, तलाशी दे देगा खुदा, बुलंदी में बख्शेगा, खुदा देना दी है सुबह, खुदा देना दी है सुबह, सद करेगी तारीफ बयां, सद करेगी तारीफ बयां, शुक्राने में माना मांगा, बुजुर्गी उसकी गा मांगा, शुक्राने में माना मांगा, बुजुर्गी उसकी गा मांगा, है गल यहोवा दे हुजूर, है गल यहोवा दे हुजूर, आबद के हुंदी है मंजूर, आबद के हुंदी है मंजूर, सेठ के बच्चे खूब तैयार, उन सब कुर्बा लेते सिंगदार, सेठ के बच्चे खूब तैयार, उन सब कुर्बा लेते सिंगदार, बेबूजे दिल ये देखणगे, बेबूजे दिल ये देखणगे, खुश हो मन मारे खुशी दे, खुश हो मन मारे खुशी दे, जो ढूंढ दे राया हो वादा, दिल जिंदा हो बे ओ नादा, जो ढूंढ दे राया हो वादा, दिल जिंदा हो बे ओ नादा। खुदावन का हालेलुया, शुक्र। हालेलुया। बेशक वो सुनता है। वो कलाम कहता है कि वो बहरा नहीं कि सुनता नहीं, उसके हाथ छोटे नहीं कि हम तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन हमारी दुआओं के जवाब क्यों नहीं आते? इसका इस क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट वर्स में इज़ाया की मिलता है कि हालांकि उसके कान भारी नहीं, हालांकि उसके हाथ छोटे नहीं, लेकिन हमारे गुनाहों ने उसे हमसे दूर कर दिया। हमारे गुनाहों ने, हमारे गुनाह जो हमारे माँ बाप आदम और हवा ने किया, उससे हम दूर हो गए अपने खुदावन से। और क्या है ये अजीम उसका प्लान कि यशुआ, यस्सु के वसीले से हम उसके करीब वापस हो जाते हैं। जब हम रूह में एक हो जाते हैं, जब अपने दिल की जमीन को धोते हैं खुदावंद यीशु के लहू से, और इसमें एक एक चीज, एक एक ऐसी बात जो कि एक वीड, एक थॉर्न, एक कांटे के बराबर मानी जाए, वो सबको अगर हम चुन के साफ कर दें और हम कहें यीशु हमें धो डाल, तो फिर हम जब उससे पुकारते हैं तो रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उस तो मंगता है। Let's continue to praise our Father who listens to us, but He just wants us to be pure, pure at heart. हम कई दफा लफ्जी तौर पे प्योर हो जाते हैं,
हम मुंह से अच्छी बातें करते हैं लेकिन दिल हमारे पाक नहीं होते, फिर खुदा नहीं सुनता। तो आए अपने दिलों को पाक करें ताकि खुदा हमारी सुने, जवाब दे। हालेलुया। प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं और गीत एक गाते हैं, क्रूज है तेरा निशान। आगे बढ़े Oh जवान। yes, one of my favorite Sunday school song. I loved this song. हम एग्जैक्टली, गाते थे। मेरा भी फेवरेट है ये, वन ऑफ माय हाँ, फेवरेट्स एज वेल। wow, amazing. उसे तेरा निशान, आगे बढ़े जवान जवान, पीछे ना हटना कभी कभी, यीशु है तेरी जगह जगह, रूह से तेरा निशान निशान, आगे बढ़े जवान जवान, पीछे ना हटना कभी कभी, यीशु यीशु है है तेरी तेरी चट्टान चट्टान चट्टान, चट्टान। नैया तेरी कौन लगाएगा पार, भले यीशु हो हो सकता सकता है, है, केवल यीशु हो हो सकता सकता है है, तेरी तेरी नैया नैया का मर्दार। बस वहाँ से तेरा निशान निशान, आगे आगे बढ़ बढ़े रहा है जवान जवान जवान, जवान, पीछे पीछे ना हटना हटना कभी। कभी कभी, यीशु तू है है तेरी तेरी जगह जगह, चट्टान चट्टान, तेरी खातिर आया आया जगत जगत में में, तुझको तुझको बचाने बचाने को, को, तेरी तेरी खातिर खातिर आया आया जगत जगत में, में। तुझको को बचाने बचाने को, को, तेरे ही लिए मेरे यीशु तूने खोला, ना तेरे ही तेरे लिए लिए यीशु तूने ने खोला, खोला मुक्ति मुक्ति के दर को, मुक्ति के के दर दर को, से तेरा निशान निशान, आगे बढ़ जवान जवान, पीछे ना हटना ना कभी कभी कभी, कभी, यीशु यीशु है है तेरी तेरी चट्टान चट्टान। चट्टान। Hallelujah. चला Soldiers जाऊं never go back. पास उसी के, उसमें है जिंदगी, बढ़ता चला चला जा जाऊं तू पास साथ मसीह मसीह के, के, उसमें उसमें है है जिंदगी, जिंदगी। आइंदा जहां जहाँ में पाएगा तू, आइंदा आइंदा जहां जहाँ में में पाएगा पाएगा तू, तू, तेरी अबदी जिंदगी, अब दी जिंदगी। जिंदगी, से तेरा तेरा निशान निशान, निशान, आगे आगे बढ़े बढ़ जवान जवान जवान, जवान, पीछे पीछे ना हटना ना कभी कभी कभी, कभी। तू है तेरी चट्टान चट्टान। Praise the हालेलुया। Lord.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि हम सोल्जर्स बढ़ रहे हैं, मैं अपने आप को सोल्जर कहती हूँ, फ्रंट लाइन सोल्जर। और फ्रंट लाइन सोल्जर हमेशा रेडी रहता है। बॉर्डर पे जब भी उसका बुलावा आए तो उसको सब काम छोड़ के जाना पड़ता है, चाहे कोई बर्थडे पार्टी हो, चाहे एनिवर्सरी का फंक्शन हो, चाहे कोई क्रिसमस का ओकेजन हो, चाहे कोई ईद त्योहार हो, उसको सब कुछ छोड़ के बॉर्डर पे जाना पड़ता है अगर उसका बुलावा आ जाए कि जंग शुरू हो गई है। तो मसीही तो हर वक्त जंग में रहता है, 24 घंटे वो जंग में रहता है, क्योंकि हमारी जंग जो है वो जिस्मानी नहीं, हमारी जंग तो है रूहानी। और रूह में रह के हमें हर वक्त कमर बस्ता रहना चाहिए, और जंगजू सिपाही के लिबास हमेशा पहने चाहिए। और अब मैं आ रही हूँ पाकिस्तान और कश्मीर में, हम फर्स्ट अपना समर कैंप करेंगे। सोल्जर्स तैयार होंगे, सोल्जर्स तैयार होंगे, ताकि हर जंग वो जीत सके, जैसे कि मैं हर जंग जीतती हूँ। जब मैं दुआ करती हूँ तो खुदावन सुनता है और अपने वक्त मुकर्रर पे उसका जवाब देता है। आई एम अ टेस्टिमनी, आई एम अ लिविंग टेस्टिमनी, एंड आई हैव miracles in my life every single day, and I have so many testimonies to share, and I want all of you to have testimonies. When you win wars, when you pray and God answers, you can tell others that I serve a God who's a living God, and He answers. He answers. When I pray, He answers, because He listens. He listens. Why? Because my sin has been washed by the blood of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We continue to worship. खुदा की तारीफ। Ish. नेक्स्ट एंड लास्ट जो गीत है वो है यीशु का लहू मेरी शिफा है। Oh, Bishak. Bishak. तो यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। मेरा हते दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू का धारा। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू का धारा। बहाए सबके लिए बहा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी बका है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। बचाई उसने हयात मेरी,
बड़ी सी से है बात मेरी, बचाई उसने हयात मेरी, बनी उसी से है बात मेरी, ये रास्ता मेरी नजात का है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। खुदावंद का शुक्र। Thank you. Thank you, Father God. Thank you, Abba Father, that we can approach your throne because we've been washed by the blood of Jesus. ये वो खून है जो हमें धो के पाक साफ करता है ताकि हम तेरी उस मेज पे आ सके जिससे हम दूर हो गए। तू हमसे हम कलाम होता था, हम तेरी आवाज सुनते थे जब हम उसी मकाम पे थे जो पाक जगह थी, बाग एदन। लेकिन खुदावन जब गुनाह हमारी जिंदगी में आया, और ये वो मौरूसी गुनाह है जो पुश्त दर पुश्त दर पुश्त आदम से आदम की औलाद की और उसकी औलाद और उसकी औलाद के आगे हमें विरसे में मिलता गया, तब जब तक कि तू ने ये गंदे कपड़े नहीं पहने, ये जिस्म नहीं लिया और हमारा कफारा नहीं दिया। क्योंकि कोई बछड़े का लहू इतना पाक नहीं कि हमें धो सके, वो सिर्फ साल भर के लिए ही धो पाता था। तो कितने साल तक हम बर्रे को ज़बा करके अपनी खलासी और मखलसी हासिल करेंगे? कोई भी बर्रे का लहू इतना पाक नहीं कि वो हमें धो के उस मकाम तक पहुंचा सके जहां पे तू मौजूद है, जहां तू तख्त नशीं है, जो कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स हमसे दूर है, क्योंकि हमें एक टाइम कैप्सूल में बांध दिया गया। हम उस इटर्नल जगह पे मौजूद थे जहां पे वक्त की पाबंदी नहीं थी, लेकिन हमें पाबंद किया गया ताकि हम ओबीडियंट हो सकें, ताकि हम फर्माबरदार हो सकें। तू हमें फर्माबरदारी सिखा सके, और 4000 साल तक तूने इंतजार किया कि तेरे लोग फर्माबरदार हों, लेकिन बहुत कम तेरे फर्माबरदार हुए। और तू हर अपने औलाद से प्यार करता है, और इसलिए तूने अपना बेटा, अपना इमेज इस दुनिया में भेजा। इस गंदे कपड़े पहनने के लिए तू राजी हुआ, तूने ये प्लान बनाया ताकि तू हमें सिखा सके कि फर्माबरदारी क्या चीज होती है, जो कि हमने यीशु से सीखी, जो कि खुद खुदा था, क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह था, वो कुदरत से पैदा हुआ था, रूह की कुदरत से पैदा हुआ था, और उसने देख लिया था कि मेरी मौत कल है। तो उसने दुआ की, ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये बरदारी की वो मिसाल खुदावंद तो हमें अपनी जिंदगियों में पूरी करना की तौफीक दे आए बाप, ताकि हम जान देने तक तेरे वफादार हो। हम किसी भी तंगी, किसी भी आजमाइश, किसी भी टेस्ट में अगर फंसे तो खुदावन हम डर के भागने वाले ना हो। हम एक सोल्जर, एक सिपाही जो कि जंग में खड़ा होता है और मरते दम तक वो अपनी
कंट्री के लिए लड़ता है। खुदावंद हमें ऐसे जंगजू सिपाही बना ताकि हम हर जंग जीत के आए, क्योंकि जिंदगी और मौत तो तेरे हाथ में है। कोई शख्स जो है वो इस दुनिया से जब तक तू ना चाहे वो नहीं जा सकता, और जब तक तू ना चाहे इस दुनिया में कोई आ भी नहीं सकता। और हर एक जिंदगी तेरी ही पाबंद है, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी, लेकिन वो तेरी परफेक्ट मर्जी पूरी करने के लिए सब गामजन है। लेकिन कहीं बुरे लोगों को भी नहीं पता कि वो तेरी मर्जी पूरी कर रहे हैं। जूडस को नहीं पता था, यहूदा इस्करियोती को नहीं पता था कि वो तेरी ही मर्जी पूरी कर रहा था। लेकिन हर एक वो शख्स जिसके दिल में किसी किस्म की गलत बात पाई जाती है, वो तेरे हजूर मकबूल नहीं ठहरता, इसलिए वो पाक मकाम पे भी नहीं पहुंच सकता। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम हर जंग, ईमान की हर जंग जीत सके और तेरे हजूर मकबूल ठहरे। बिकॉज it is written that without faith it is impossible to please God. Father God, enable us to please you and you alone, because we are called to be your disciples. We are not called to be pastors. We are not called to be worshippers. We are not called to be evangelists. What are we called? We are called to be disciples. And a true disciple evangelizes anyways, by his walk, by his talk, by her walk, by her talk, by her every action, by his every action. They preach the gospel. We should become living, talking Bibles, so that the person who has not read the Bible, they see us and they see Jesus, because Jesus is found in every book of the Bible. And Bible means books. And there are 66 books. Father God, enable us to see your Son in every book, because your Son is seen in every single book of the Bible. Hallelujah. तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। और ये सब कुछ मांगा है और पाया है खुदा यीशु के नाम से, क्योंकि लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो पाओगे। तो मैंने मांगा और मैंने पाया। आमीन। और सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, हम 3 हैं। पहले हम एक और भाई थे, शायद कनेक्शन लूज हो गया। आजकल पाकिस्तान के कनेक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है। शैतान को ये पता है कि फोर्सेस भारी भारी काम कर रही हैं पाकिस्तान के लिए। और वो फोर्स कौन है? वो फोर्स है यीशु की फोर्स। हमारे पास कोई हमारे पास कोई हथियार नहीं, लेकिन हमारे पास इख्तियार है। हमारे पास इख्तियार है, और वो इख्तियार मिलता है ऊपर से। वो किसी को भी इख्तियार दे सकता है जंग जीतने का, बशर्ते कि आप कितना खाली करते हैं अपने मश्क को। और जैसे कि पहले गीत गाया गया था, शेकी ने आज आज कोयटा में काफी जो है आजकल हालात जो है वो नाजुक हैं। लेकिन नाजुक उनके लिए हैं जो डरते हैं, जो डरते हैं कि कल क्या होगा। हम नहीं डरते, मैं नहीं डरती, क्योंकि आई नो कि मैं टुमारो इज सिक्योर इन हिम, वेदर आई एम अलाइव और आई डाई, आई नो वेयर आई एम। और मुझे ये भी पता है कि मौत का फरिश्ता तब तक नहीं आएगा जब तक कि खुदावन नहीं चाहेगा। और अगर खुदावन ने असाइन कर दिया है मौत का फरिश्ता, तो मैं भाग नहीं सकती उस मौत के फरिश्ते से। तो डर किस बात का? डर किस बात का? लेकिन ऑफ कोर्स हमें रूह के साथ अकल के से भी चलना चाहिए। हमें रोड के बीच में जाके खुदा खड़े होके खुदा को टेस्ट नहीं करना चाहिए कि आज मेरा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ईमान खुदावंत पे है।
मेरा ईमान खुदावंद पे है, लेकिन वही ईमान मुझे कहता है कि अपने तई, अगर शैतान मुझे कहे अपने तई नीचे गिरा दे, तो वही ईमान मुझे कहता है कि तू अपने खुदा को आजमाइश में ना डाल। क्या ऐसा कलाम आपके दिल में काम करता है? ऐसा कलाम कि जब आपके सामने कोई शैतान बन के कलाम पेश करे, तो एक सिंगल धारी तलवार, एक धार की तलवार से अगर आपके से कोई आप पे अटैक करे, तो क्या आपके पास दो धारी तलवार है उसे जवाब देने के लिए? आपके पास ये दो धारी तलवार तभी आ सकती है जब आपने इसको पढ़ा है, और ना सिर्फ पढ़ा है, ये इस पे मेडिटेट किया है, इसके ऊपर आपने सोचा है, इस पे समझा है, इस पे दुआएं की हैं, इस पे रोजे रखे हैं, इसके लिए आंसू बहाए हैं, ताकि आप इसके भेदों को, गहरे भेदों को समझ सके, जान सके, क्योंकि ये रूह से लिखा गया है, और रूह के भेद पढ़ने से नहीं समझ में आते। क्योंकि बहुत से अपोलोजेटिक हैं, बहुत से हमारे गैर मसीही है जो इसको मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। जानते कैसे हैं? कि उनको ये याद है। वो अभी भी बता सकते हैं कि मत्ती 6 बाब उसकी 4 आयत में ये लिखा है, या ये यूहन्ना की अंजील उसके 12 बाब और 6 आयत में ये लिखा है। मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने बाइबल रटी नहीं, मैंने बाइबल समझी है, और समझ सिर्फ रूह से आती है। अगर आपने रूह है तो फिर पाक रूह आपको समझाता है, और अगर रूह नहीं तो आप रट के खुदावन तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। आप रट के मुकाबलाबाजी कर सकते हैं, और किसी कमजोर सोल्जर से आप जीत भी सकते हैं, क्योंकि उस सोल्जर बेचारे ने पूरा कलाम नहीं पढ़ा। शायद जिंदगी की मसरूफियात की वजह से, शायद वो शैतान ने उसे घेर लिया और वो गिर गया और वो आगे नहीं बढ़ सका, शायद इसलिए वो कमजोर पड़ गया। लेकिन उसकी कमजोरी कलाम की कमजोरी नहीं, उसका गिरना कलाम का गिरना नहीं, उसका गिरना सिर्फ ये साबित करता है कि मसीह अजीम है, ये कलाम अजीम है, ये पाक कलाम है, और इसकी बुलंदियों तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है इस जिस्म के लिए, इस जिस्म के लिए। और this brings us to this today's declaration। और मैं चाहूंगी कि आप मैं फर्स्ट डिक्लेयर करती हूँ और आप इसको डिक्लेयर करें उर्दू में चाहे इंग्लिश में। और इट्स अमेजिंग दैट द फर्स्ट सॉन्ग जो कि सॉरी जबूर 119 जो शेकी ने गाया, वो इसी से मुनासबत रखता है। और मैंने कहा था कि आई विल शेयर what has God has laid on my heart। So the verse for today is, और मैं इतना भी बता दूं, दिस इज द फर्स्ट मैसेज ऑफ अप्रैल। सो अप्रैल, every month God gives me a topic for that month and a color for that month as well, because Stars of David, remember, is all about colors. You see different flag colors, and every flag has colors, and every color has a meaning. And I'm wearing the same color, similar green is found in all these three flags. So we have the flag of Italy। कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है ये वाला फ्लैग और ये वाला फ्लैग कौन सा है? एक तो आई गेस मुझे पैलेस्टाइन का लग रहा यस, दिस इज द पैलेस्टीनियन फ्लैग, एंड दिस है। आई डोंट नो, दिस इज द आइडिया नहीं। फ्लैग ऑफ हंगरी। हंगरी और इटली आप देख सकते हैं, कॉर्नर में इटली है। ये बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन में फर्क ये है कि इटली का फ्लैग में वही कलर्स है, ग्रीन, व्हाइट एंड रेड। इटली के फ्लैग में जो स्ट्राइप्स हैं वो वर्टिकल हैं, और जो हंगरी का फ्लैग है, ये जो आपको नजर आ रहा है, सेम कलर्स हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। दिस इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। लेकिन हंगरी और इटली में बहुत सी चीजें कॉमन है, और उसमें एक चीज कॉमन है, आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप। मैं दोनों मुल्कों में गई हूं, और उन दोनों मुल्कों में इतने ज्यादा बुत हैं, इतने ज्यादा बुत हैं। आपको यीशु का बुत मिलेगा, मरियम का बुत मिलेगा, बेबी जीसस का बुत मिलेगा, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, और आप जितने आप सोच सकते हैं, पीटर, हर एक के बुत आपको मिलेंगे, हर एक के नाम के आपको चर्चेस मिलेंगे, और उसका बुत सामने नजर आएगा।
and they are heavily demon possessed because the scripture says, ये हुक्मों से 10 हुक्मों में से एक हुक्म है कि तू किसी चीज की मूरत ना बना और उसको सजदा ना कर। और बहुत माजरत के साथ जो अगर सुन रहा है या आगे आने वाले दिनों में सुनेगा, माजरत के साथ अपने मसीही कैथलिक बहन भाइयों से कहती हूं कि मसीह ईमान से पाया जाता है, बुतों में नहीं पाया जाता, रोजरी में नहीं पाया जाता। अगर कोई मुझे कैथलिक भाई या बहन इस कलाम में से दिखा दे कि रोजरी पढ़ने से खुदा मिलता है, तो मैं आज से रोजरी पढ़ना शुरू कर दूंगी। अगर कोई मुझे ये कैथलिक बहन भाई बता दे कि नवीना पढ़ने से 9 दिन रोजरी पढ़ने से आपको पाकरू मिल जाता है, तो मैं नवीना पढ़ना शुरू कर दूंगी और मैं भी बुतों की पूजा शुरू कर दूंगी। लेकिन खुदा ना नवीना पढ़ने से मिलता है, ना रोजरी पढ़ने से मिलता है। खुदा मिलता है अपने आप को खाली करने से। और वो वर्ष जो आज के लिए है वो है यूहन्ना रसूल की अंजील, जॉन, the Gospel of John, chapter 12, verse 24. So it says, truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. This topic is unending. This verse is so much depth in it that I can go on and on and on and talk about it for 24 hours. But just to give the gist of this verse, I will bring you to the same, I will join the same part of the psalm that Shreki was singing, Psalm 119, which talks about wineskins. और ये मिसाल हम आगे नए नामे में पढ़ते हैं वाइन स्किन्स की, और उसमें यूज किया गया कि जो कि मैं है वो आपको अगर आप मश्क में डालें तो पुरानी मश्क में नहीं डाल सकते, वो मश्क फट जाती है। ये मिसाल है, इमसाल है। और इसमें मैं गहराई में नहीं जाऊंगी, बहुत गहराई में जाऊंगी तो हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 1 घंटे में हम सब कुछ थोड़ा बहुत जो मैं कवर कर सकती हूँ वो करें। लेकिन जो बात मैं आपको आज मैं चाहती हूँ कि आप लेके जाए साथ, वो ये है कि अगर आप कलाम के भेदों को समझना चाहते हैं, if you really want to understand the depths of the scripture, then you need to know the Holy Spirit. क्योंकि कलाम बहुत जानते हैं लोग, पास्टर्स मुझसे बहुत ज्यादा कलाम जानते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा कलाम पेश करते हैं, बिशप्स बहुत अच्छा कलाम पेश करते हैं, मुझसे ज्यादा कलाम जानते हैं। कलाम जानना भी चाहिए। कलाम जाने बगैर तो आप कैसे, आपको पता चलेगा कि मसीह क्या चाहता है, खुदा क्या चाहता है और क्या लिखा है। लेकिन लिखा जो है, अगर हम उसको पढ़ के रट लें या हम यूट्यूब पे मैसेजेस सुन के हम अपने मैसेजेस तैयार कर लें, तो हम पाखरू की गहराई तक नहीं पहुंचे। पाखरू कैसे मिलता है? माजरत के साथ फिर से बहुत से पास्टर्स हैं जो बहुत अच्छे कलाम पेश कर रहे हैं, लेकिन वो खाली हैं, वो पाखरू से भरे हुए नहीं, वो कलाम से भरे हुए हैं, वो कलाम से भरे हुए हैं। और उनकी जिंदगियों में जो काम है, उनसे पता चलता है कि वो पाखरू से भरे नहीं। क्योंकि कलाम हमें बताता है कि आपको कैसे पता चलेगा कोई खुदा का खादिम है या नहीं। खुदा का खादिम यानी कि मैं भी खादिम हो सकती। खादिम का मतलब पास्टर नहीं होता, खादिम का मतलब होता है सर्वेंट। वी आर ऑल कॉल्ड टू बी सर्वेंट्स ऑफ गॉड, just like Jesus. He made himself a servant. He washed the feet of his disciples. He became a servant. He lowered himself to being so much humble that he who could perform any miracle, he washed the feet of his disciples, the dirty feet who must have gone in the dirt, walking around,
and he washed the feet with his hands, the pure, holy hands of the Son of the living God. और हम नापाक चीज को छूना नहीं चाहते। नहीं 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 नहीं, ये बहुत गंदा है, ये गंदा, ये बेकारी है, ये we call people names and we keep away from them. हमें इसको छूना नहीं है। हमें छूत की बीमारी हो जाएगी अगर हम किसी को हाथ लगा लेंगे। Imagine our Jesus, he touched the feet, the dirty feet of his disciples, setting the example for ourselves कि तुम्हें छोटा बनना है। मुझे छोटे बनने की जरूरत नहीं। मैं तख्त पे था, मैं तख्त पे हूं, मैं तख्त नशी हूं। मैं क्यों आया? तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें वफादारी, ईमानदारी सिखाने के लिए, क्योंकि आदम और हवा ना वफादार थे और ना ईमानदार थे। तो हमें उसने वफादारी और ईमानदारी सिखाई, लेकिन अफसोस के साथ हम जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, हम में से बहुत कितने हैं जो ईमानदार हैं, जो वफादार हैं, जो खतरा देख के भागते नहीं, जो कहते हैं जान जाए पर वचन ना जाए। लोग आज वादा करते हैं, कल भूल जाते हैं, और कलाम कहता है कि अपने वादों पे कायम रहो। जो शख्स अपने कहे हुए पे कायम नहीं रहता, उस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, और अगर आपका दोस्त वो नहीं है तो वो आपका फिर दुश्मन है। क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उसने जो कहा वो करके दिखाया, उसने जो कहा वो करके दिखाया। और रूह के फलों से हम लोगों को पहचानते हैं। अगर कलाम कोई बहुत अच्छा पेश करता है तो उसमें बड़ी बात नहीं, क्योंकि कलाम अच्छा पेश करना किसकी एबिलिटी है? वो खुदावंद की एबिलिटी है कि आप पढ़ रहे हैं कलाम, खुदावंद आपको समझ दे रहा है, आपको अकल दे रहा है। सोलोमन बादशाह ने अकल मांगी अपने किंगडम की वो करने के लिए, जजमेंट करने के लिए, ताकि वो सही तरह से लोगों को जज कर सके। उसे विजडम मांगा, उसको मिला। कलाम विजडम से मिलता है, रूह विजडम से नहीं मिलती। रूह विजडम से नहीं मिलती, रूह अंडरस्टैंडिंग से मिलती है। अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलती है? अंडरस्टैंडिंग मिलती है अपने आप को खाली करने से। when you empty yourselves with everything, all the desires of the flesh, when you say I decrease and him increase, like Paul says. Paul had finished himself. There was no desire in his own mind, in his heart, that he lived for himself. He went on foot to preach the gospel. He starved many a times. He was put in prison, but he was delightful even in the prison. फिलिपियों का खत सबसे सबसे जॉयफुल खत 4:4 में लिखा है, रिजॉइस, एंड आई से अगेन रिजॉइस। कहाँ लिखा गया? एक महल में, जहां पे सर्वेंट्स आपके लिए काम करते रहते हैं। कौन नहीं चाहता कि हमारे 10 इधर और 10 इधर हो, और हमारे शान से सोफे पे बैठ जाए और सब हमारे लिए काम करें। सब ऐसे कोई जिंदगी पसंद करते हैं जिसमें कोई दुख ना हो, कोई रंजिश ना हो, कोई। अभी हम लोग टर्की गए थे, वहां पे हम पैलेस देखा। वहां पे 26 कमरे थे उस पैलेस में, और बादशाह हर कमरे में एक मुख्तलिफ उसका रीजन था कि यहाँ पे गेस्ट ने बैठना है, यहाँ पे सर्वेंट्स को हुक्म मिलेगा, ये यहाँ पे मेरी बेगम का ड्रेसिंग है, यहाँ पे गिफ्ट रिसीव करने का कमरा है। तो 26 कमरे थे उसके महल में, ह्यूमंगस पैलेस। Where is he now? Where is he? He's dead and gone. His ultimate fate in the flesh was same as that of a beggar. Where is he now? Is he with Abraham? Or is he in the lake of fire? Will that is the thing, that आप इस जिस्म में रह के बहुत सी आसाइशें हासिल कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपकी रूह का क्या? What happens to your soul when you die? That is the ultimate question. And that is the reason that we need to empty ourselves. क्योंकि अगर हम भरे रहेंगे अपने प्यालों से, तो हमें रूह काम नहीं करेगा, हमें सिर्फ विजडम काम करेगा, और विजडम से हम खाली रहेंगे। रूह के फल अगर किसी की जिंदगी में नजर नहीं आते, रूह के 9 फल हैं, और अगर वो
एक भी फल किसी की जिंदगी में नहीं आता नजर, तो दैट पर्सन नीड्स टू वर्क रियली हार्ड ऑन हिमसेल्फ। वो अपनी कलीसिया पे काम कर रहा है, लेकिन आई बिलीव सबसे ज्यादा उसको अपने आप पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कलीसिया को रूह के फल उसमें नजर नहीं आ रहे तो कलीसिया तो बचाई जाएगी, वो तो बेचारी डरती रहती है। कलाम उसको इतना डराते हैं, पास्टर्स इतना डराते हैं कि वो डर डर के ही अपने रास्ते दुरुस्त कर लेती है। और नरसिंगा फूके जाने पर पता चलेगा कलीसिया गायब हो गई, बेचारा पास्टर पीछे रह गया, और कई वर्शिपर्स जो अपने आप को वर्शिपर कहते हैं वो भी पीछे रह गए अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। सो सरेंडर इज द की, एंड वी नीड टू बी डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। हमें कोई भी ओहदा मिल जाए वो एक डिफरेंट है। आई एम नॉट कॉल्ड टू बी अ पास्टर, आई एम नॉट कॉल्ड टू बी अ वर्शिपर हु सिंग्स, बिकॉज मुझे वो खूबसूरत आवाज नहीं बख्शी खुदावन ने। अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो हो सकता है, बट टुडे आई हैव अ वर्शिपर फ्रॉम क्वेटा, गॉड has blessed him with a beautiful voice and a heart who worships God, and we are enthroning God with our praises. Psalm 22:3, the foundation verse of Stars of David. और जब हम खुदावंद को तख्त नशी करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी जो आवाज उसके हुजूर मकबूल नहीं ठहरती, वो सुरीली आवाजों के पीछे नहीं है, वो परफेक्ट आवाजों के पीछे नहीं है। अगर वो परफेक्शन के पीछे होता तो उसने शैतान को नहीं निकालना था। ही वॉज द परफेक्ट क्वायर लीडर, perfect in beauty, perfect in wisdom. I'm not saying this, the scripture says it. Perfect in beauty, perfect in wisdom, perfect in praise. He was a model of perfection, we read in the scripture, until iniquity was found in him. जब गरूर उसके दिल में आया, तो when you're so perfect you think nobody can be better than me, and that is where we fall. अगर हम समझते हैं कि हम सबसे अच्छे वर्शिपर हैं, हम सबसे अच्छे वो हैं पास्टर हैं, प्रीचर हैं, हम सबसे अच्छे टीचर हैं, हमसे अच्छी कोई दुआ नहीं कर सकता, हमसे अच्छा कोई साज नहीं बचा सकता, we are the best, that is the time that Satan is working in you, and that is the time Satan is working in me. Because अगर हम ये सोच रखते हैं तो खुदा हम में काम नहीं करेगा, और अगर वो हम में काम नहीं करेगा तो हमारी दुआएं सुनी नहीं जाएंगी। तो फिर कौन हमारे साथ आके खड़ा हो सकता है? फिर शैतान खड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर खुदा हमसे दूर है तो कोई शख्स हमारे करीब है, और वो है शैतान। क्योंकि हमारे साथ कोई ना कोई हमेशा होता है, या खुदा हो सकता है या शैतान हो सकता है, क्योंकि दोनों रूह हैं। और अगर हम गुनाह करते हैं तो रूह जो खुदावंद है वो चला जाता है। वो जोर जबरदस्ती का खुदावंद नहीं, लेकिन शैतान जोर जबरदस्ती का खुदावंद है। वो खुदावंद इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो अपने आप को खुदा मनवाना चाहता है, और कईयों की जिंदगी में खुदा बन के काम भी कर रहा है। लेकिन हमारा खुदावंद, खुदा जो सच्चा खुदावंद है, जो जिस्म में आया, जिसने हमारे लिए जान दी ताकि हम जान सके कि हम हर जंग जीत सकते हैं। कैसे? ईमान से। और ईमान नजर नहीं आता। ईमान कैसे आता है? ईमान सुनने से आता है, ईमान पढ़ने से नहीं आता। ईमान पढ़ने से नहीं आता। तो इंटरेस्टिंगली जो कलीसिया बैठ के रोज हर हर हफ्ते या यूट्यूब पे मैसेजेस सुनती है, उस कलीसिया में ईमान पैदा हो रहा है। और जो पास्टर अपनी कलीसिया को तंबियां कर रहा है, वो किसकी सुन रहा है? वो किसकी सुन रहा है? वो खुदावन की आवाज सुनता है क्या? क्या खुदावन उससे हम कलाम होता है? और अगर हम कलाम होता है तो क्या वो अपनी राहें दुरुस्त कर रहा है? और अगर वो राहें दुरुस्त कर रहा है तो फिर उसके पास पावर होनी चाहिए, वो पावर जो कि मसीह के डिसाइपल्स के पास थी। और उस पावर का गलत इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो फिर बहुत से ऐसे ही होंगे जो कि आखिरी दिन पे खुदा कहेगा, जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि पावर तो आपको खुदा दे देता है, जैसे शैतान को पावर मिली,
खुदावंद ने उसे पावर नहीं ली। आज भी वो लोगों को पैसे दे सकता है, वो लोगों को शोहरत दे सकता है। कितने सेलिब्रिटीज हैं हॉलीवुड के जिन्होंने अपने सोल्स बेच दिए हैं, और इतने आप अब तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। इतनी विचेस हैं जिन्होंने अपने सोल्स जो है बेच दिए हैं शैतान को। किस लिए? ताकि हम शोहरत हासिल कर सके, हमें दौलत मिल सके। क्योंकि हर कोई जिंदगी में आसाइश चाहता है। कौन है जो दौलत नहीं चाहता? मैं भी दौलत चाहती हूँ, लेकिन नॉट बाय रॉन्ग मीन्स। अपना मैं एक भिखारी की जिंदगी में रहना को पसंद करूंगी बनिस्बत के मैं अपना सोल बेच के ढेर सारा शोहरत और ढेर सारा रुपया कमा लूं। These are two things that everyone likes, to be praised and to have money. कोई अगर ऐसा शख्स है जो कहे मुझे दोनों चीजें पसंद नहीं, तो वो झूठ बोलता है। क्योंकि किसको बुराई पसंद है? किसको तंगी में रहना पसंद है कि मेरी पॉकेट खाली हो और मुझे मांगना पड़े? किसी को नहीं पसंद। इंटरेस्टिंगली कहीं लाहौर और कराची और कोयटा में आप लोग को पता ही है, हम एक मुल्क से हैं। कईयों को मांगना अच्छा लगता है एक्चुअली। मैंने भिखारी ऐसे देखे हैं कि कई मर्सिडीज में आते हैं, फिर अपना गेटअप भिखारी वाला पहनते हैं, दिन भर में खूब कमाई करते हैं और फिर कपड़े चेंज करके वापस चले जाते हैं। उनको मांगना पसंद है। वो मांगते रहते हैं कशकोल लेके कि हमें खुद मेहनत ना करनी पड़े, हम मांगते रहें। लेकिन हमारे खुदावन ने हमें मांगना नहीं सिखाया लोगों से। हमारे खुदावन ने मांगना सिखाया है कि मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। तो हम पोशीदगी में जाके अपने कमरे को लॉक करके, लॉक मतलब कुंडी लगा के नहीं, मतलब बंद होके अकेले में कहा कि जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। और वो कब देगा? जब हमारे दिल की हालत ऐसी होगी कि वो हमारे दिल को, हमारा दिल उसे पसंद आ जाए। और दिल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो मोस्ट पाक तरीन मकाम है। यहाँ ये हमारी थ्रोन है। इस थ्रोन पे आप किसको जगह देते हैं, उससे आपकी लाइफ डिटरमिन होती है। कई लोग अपने बीवी, कई लोग अपने हस्बैंड, कई लोग अपने बच्चों को, कई लोग अपने माँ, कई लोग अपने बाप, कई लोग अपने दोस्त अहबाब, यू नेम इट, जब उनको प्रायोरिटाइज कर दें और अपने दिल में उनकी अहमियत पहले हो जाए और बाकी सब और खुदा की दूसरे नंबर पे हो जाए, तो फिर खुदावंद कहता है मैं गयूर खुदावंद हूँ, आई एम अ जेलस गॉड। That means he needs to be number one all the time. जब उसको हम आगे रखेंगे तो फिर सब चीजें वो हमें दे देगा, सब चीजें हमें वो दे देगा। That is written. और वो वादा करने वाला खुदावंद है, वादा करके ना निभाने वाला खुदावंद नहीं है। अगर वादा किया है और आप वादे क्लेम कर रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा, तो फिर अपने आप को देखिए। मैं भी अपने, जब मैं मांगती हूँ और मुझे नहीं मिलता, तो आई नेवर कंप्लेन, व्हाई इज नॉट गॉड गिविंग टू मी। आई आस्क, बट देन आई लुक इन माई ओन सेल्फ, वेयर डिड आई गो रॉन्ग? मुझ में क्या कमी है कि मेरी खुदा सुन नहीं रहा? मुझ में कोई कमी होगी जो मेरा खुदा नहीं सुनता? क्योंकि यीशु जो मुकम्मल था, उसके कहने से सब कुछ हो जाता था। उसके डिसाइपल्स ने जब उसे फॉलो करना शुरू किया, तो उनके कहने से भी लंगड़े चलते थे। तो अपने आप को खाली करना, और अब उसकी बात आ जाते हैं, मश्क की बात आ जाती है, जिसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, आई विल जस्ट क्लोज इट, कि नई में पुरानी मश्क में नहीं डालते। ये एक एक्सपेरिमेंट करके भी अगर आप देखना चाहें, तो वो जो वाइन स्किन है, इसकी कैसे बनती है और क्या होता है, उसमें मैं कभी सेपरेट मैसेज जब भी खुदावन का रूह चाहे तो उसमें दूंगी। लेकिन उसको अगर आप नहीं डालेंगे तो फट जाएगी। तो मैं का बहुत इंपॉर्टेंस है क्रिश्चियनिटी में। और ये मैं जो कि गैर अक़वाम शराब समझते हैं और समझते हैं कि क्रिश्चियंस को तो शराब पीना जायज है और इनको तो शराब में मदहोश रहना अच्छा लगता है। वेल, जो शराब हमें जायज है और जिसे हमें मदहोश रहना अच्छा लगता है, वो है रूह की शराब।
हम रूह के ऐसे मतवाले बने। खुदावन चाहता है कि हमें दुनिया की होश ना हो और हमारी हर ख्वाहिशें ऑटोमेटिक खुदा पूरी कर दे। ये हमारा खुदा चाहता है कि हम रूह में मदहोश हो जाएं, हम रूह की मैं पिए। और ये मैं इस जिस्म में अगर डाली जाएगी, जबकि ये जिस्म ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि रूह जो है वो पाक है। और अगर हमारा जिस्म नापाक है और खुदा इसमें ढेल देगा, तो वी विल डाई। क्योंकि यही होता है कि जब एक मश्क में हम डालेंगे तो वो मश्क फट जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। किस चीज की? हमें जीते जी मरने की ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। जैसे कि आज की वर्ष में लिखा कि जब तक कि एक ग्रेन ऑफ व्हीट मर नहीं जाता, तब तक कि उसमें से फल नहीं आ सकता। तो अब क्या सबको मरने के बाद तो फिर वो तो हिसाब है ही है कि या तो वो यीशु के पास होंगे या फिर वेट करेंगे कि जी आग में उनकी कब बारी आएगी, क्योंकि अभी फौरन मरने के बाद कोई भी जहन्नम नहीं पहुंचता। देयर आर टू प्लेसेस, देयर इज अ वेटिंग एरिया। I will not go into that, but in Revelation there we read that there's a waiting area, and the people who are away from God and who did not know Jesus, they are in the waiting area. And those who do know Jesus and who slept in Jesus, knowing Jesus, and who started the race with Jesus and who believe Jesus, they are with Jesus. There's a waiting period as well for them. So जीते जी मरना बहुत मुश्किल है। बिकॉज दैट मीन्स आप अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखें। हर दफा आप अपने अगर बीवी है तो हस्बैंड की ख्वाहिश को आगे रखे, अगर हस्बैंड है तो वो बीवी की ख्वाहिश को आगे रख रहा है, माँ है तो वो बच्चों की ख्वाहिश को देख रही है, अपने आप को पीछे रख रही है। उसको नींद आ रही है, वो थकी हुई है, वो फिर भी काम कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने कपड़े नहीं धोए तो बच्चों को कपड़े साफ नहीं मिलेंगे, हस्बैंड को साफ कपड़े नहीं मिलेंगे। माँ है तो वो भी बच्चों के लिए, बीवी है तो वो भी सोचती है कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड के लिए करना है। अपने पेरेंट्स के लिए अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो हमें उनके लिए सोचना पड़ता है। तो जब भी हम अपने आप को पीछे रखें, जब जिस्म आपसे चीखो पुकार कर रहा हो कि नहीं ये नहीं करो, ये दिल नहीं चाह रहा है, हम थके हुए हैं, हमारा मूड नहीं है, और हम अपने आप पे जबर करें, तो फिर रूह जीतती है। जब भी हम अपने आप पे जबर करें और वो काम करें जो रूह की मुनासबत से सही है, जो हमारी अक्ल की मुनासबत से नहीं, जो रूह की मुनासबत से सही है, तो फिर हम रूह के फर्जंद कहलाते हैं, हम खुदावन के बेटे कहलाते हैं, हम उसके डिसाइपल बन जाते हैं। तो हम सबको जीते जी मरने का मजा चखना चाहिए, ताकि हम उसके डिसाइपल्स कहलाएं और फिर हम वही काम कर सकें जो उसके डिसाइपल्स करते थे। और हम वेट करें कि हमें जब कुदरत मिले, पावर मिले, रूह की तरफ से पावर मिले। कलाम से पावर नहीं मिलती, कलाम से तो धुलाई होती है, खूब धुलाई होती है, कभी छटाई भी होती है। जब ट्री बेहंगम तरह से बढ़ जाता है तो फिर उसकी छटाई होती है ताकि इतना बेहंगम ना हो जाए। कलाम से छटाई होती है, कलाम से पाकीज़गी मिलती है, कलाम से पावर नहीं मिलता। पावर मिलते हैं पाक रूह से। रूह से मामूर वो जब तक नहीं होते थे डिसाइपल्स, वो आगे नहीं भेजे जाते थे, क्योंकि वो खुदा उनको पता था कि अगर यू रूह से मामूर नहीं होंगे तो ये हार के वापस आएंगे। सो लेट अस बी फिल्ड बाय द होली स्पिरिट। हम रूह से मामूरी के लिए दुआ करें। और वो कैसे हो सकता है? कि जब हम कलाम पढ़ें, कलाम हमें साफ करता है। जब हम निखर के बिल्कुल साफ हो जाते हैं, तो फिर कई लोग बहुत खुश होते हैं, ओह हमें पूरा कलाम आता है, हम बहुत चमक रहे हैं। लेकिन कलाम कहता है कि अगर आप धुल चुके हैं, साफ हो चुके हैं, सारे जाल बिल्डिंग के जो है वो कॉबवेब्स दूर हो चुके हैं, जाले दूर हो चुके हैं, डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है, तो फिर इसको खाली ना रहने दें। अगर खाली रहने देंगे तो फिर जो डाकू अंदर बैठे थे, जो कलाम पढ़ने से निकल गए,
वो बदरूहें जो कलाम पढ़ने से निकल गई, वो फिर देखेंगी, आएंगी, चेक करती हैं वो आके, जब आप कलाम पढ़ रहे होते हैं वो चेक करती हैं, खूबसूरत हो क्या मकाम, कोई है नहीं है। और अगर वो पाखरू देखते हैं तो फिर उनके लिए जगह नहीं होती, और अगर वो देखते हैं कि पाखरू नहीं है तो फिर वो आ जाती है, और एक के साथ साथ और वो लेके आती है, और उसका, उस बंदे का या उस बंदी का हालत पहले की हालत से बुरी हालत हो जाती है। क्योंकि अगर पहले उसमें एक रूह थी, तो फिर पाकीजा होने के बाद उसने पाक रूह को आने नहीं दिया, और फिर बदरू जो है वो अब 8 आके उसमें समा गई, और उसकी हालत पहले से बुरी हो गई। सो नो दैट द होली स्पिरिट हैज द पावर, द वर्ड इटसेल्फ हैज नो पावर। अगर उसमें सिर्फ पावर होती, तो हर गैर मसीही जो बाइबल पढ़ता है, जो हर मसीही जो बाइबल पढ़ता है, उसके पास वो पावर होती। तो हर कोई जो बाइबल पढ़ता है वो कलाम पढ़ रहा है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। सो पावर आती है व्हेन यू बिलीव इन गॉड। So let us all believe in God. And if anybody wants to declare it, Trib, agar aap please, anybody, if you want to declare it, declare the verse, so that when we open our mouths, we are just being faithful to God. कि हाँ, हम तेरा कलाम पढ़ते हैं और उस पे अमल करना चाहते हैं, और ऐसा ही हो। Hallelujah. I will once again declare, and all I want is that you say amen, and it is so. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Amen. Can I hear it, amen? Amen. Amen, amen, amen. Glory to God. जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, जब किसी और ने आमीन में कह दिया तो वो हो गया। तो I will not talk about colors, but keep in mind that Stars of David is all about colors. I'm wearing green today. This flag, all 3 flags have green, white, and red. One flag also has black, and every color has a meaning. But we will uphold these 3 countries today: Italy, Hungary, and Palestine. Let's just pray for a few seconds, for a few minutes, and then we close. Heavenly Father, I come before your throne of grace and mercy. Father God, you alone are holy and you alone are mighty, and there is none like you. And today I uplift these 3 countries unto your throne, Father God: Palestine, Italy, and Hungary. Father God, you alone know the hearts of the people living there. You alone know the hearts of the authorities that are appointed by you and you alone, because no authority is appointed unless until you ordain. The good and the bad authority is ordained by you alone, because you are in control. You're always in control. You're never out of control. You've designed everything for your glory alone. So, Father God, enable everyone who's in the flesh and who's waging wars in the flesh, Father God, to know the one true God who's a spirit, so that our hearts can be washed. And these hearts can only be washed by the blood of Jesus. Father God, make your Son known to the people who do not know you, who do not follow the commandments, the 10 commandments that you gave to Moses, and the commandments have been forsaken. Father God, have mercy on these people. And these are the last days, and this is the time of latter rain. And as it has been appointed by you, that in the latter rain at the end of days,
Your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams. Father God, enable people to have dreams of Jesus so that they know the one true God who was seen in flesh in Yeshua, because there was no sin that was found in him. And there is no person, living or dead, who was without sin. Every man, every woman who was born of Adam, who is the seed of Adam, is a sinner. He was or she was born in disobedience, except for one, and his name is Yeshua. He was not born of human intent. He was not born of a man or woman's desire, but of the Father, because of the will of the Father. Father God, I thank you and exalt your name, because you've heard, and you've also always heard, and you have answered my prayers in due time. So Father God, let it be so for this prayer as well. Let it come as a pleasing aroma to you, and your name be magnified to the ends of the earth. Amen and amen and amen. And the people said, Amen. amen, amen. God bless you. Shalom. Be blessed. Stay blessed and spread blessings all around you, because it is written, bless and do not curse. Our God is there. He's taking care of us. So go in peace. Bye-bye. Till tomorrow. We meet on the Bye-bye. Sabbath. Bye. Tomorrow is a Sabbath, 7th day of the week. We shall be praising our Father once again, united in hearts, holding hands in the Spirit across the nations. We will meet again tomorrow. Bye-bye. Bye.